friends, a very horrible incident has come to light in Kerala, where a young law student was sexually assaulted and brutally murdered. She got 30 stab wounds and intestines had been taken out. The entire incident reminded me of Nirbhaya case, where all of you and we were all not only worked in the streets but also in the parliament to bring in the requisite changes in the law. In spite of that, after Nirbhaya, there should not have been any other Nirbhaya in this country. But people who show no respect and consider Bharat Mata Ki Jai only as a slogan, show no respect to women or womanhood and even nationhood, are responsible for this atrocity. The idea of nationhood, the idea of morality, especially has been violated in the state of Kerala. If I really go back into the history, Kerala has shown many such instances of assaults and violence towards women due to bad administration. The fact is, Malayalis as a community and Kerala as a society have been very respectful to women culturally. But for some reasons, for past few years, the kind of violence which is happening towards women and assaults and other such complicated incidents, I think are bringing the morality issue in the society due to bad administration at stake. And under these circumstances, the state of Kerala, the administration of Kerala, has to showcase how such incidents are happening, and for 6 days there is no action on the culprits. She was a daughter of a single parent who has her own issues, and from some news items which have appeared in Kerala papers, the mother has got some psychological issues as well. So the only child who was looking after the mother and was a source of succor for the family is no more. And the fact 30 stab wounds and intestines can be taken off from a Dalit woman. These are the people who constantly talk about Dalit rights. These are the people who politicize suicides, have no time even to visit the state or ask the chief minister as to what is the condition of law and order and take cognizance of such a heinous crime. The president of the party happens to be a lady herself, a woman. Concern for Dalit and women exists only if the incidents are happening in states not ruled by them. But when such incidents have happened in states ruled by them, they will neither visit nor take cognizance or even raise the appropriate questions. मित्रों, केरल पुरम्बदूर की जगह में एक कानून की विद्यार्थी लड़की के साथ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उसमें उसके साथ न केवल दुष्कर्म हुआ बल्कि उसको मार भी दिया गया, उसकी मृत्यु भी हो गई, जिसमें 30 उसके ऊपर चाकू के वार किया गया, 30 बार चाकू से वार किया गया और उसकी आंतें तक बाहर निकाल कर फेंक दी गई। और ये हादसा दिन दहाड़े का है, उसके अपने घर का है, और उस समय पर ना पुलिस की कोई कार्रवाई हुई, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से किसी ने मदद किया, और 6 दिन से ऊपर का समय हो गया तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वो बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी, उसके पिता भी अलग रहते हैं, और ऐसे में इतना भयानक हादसा जो कि निर्भया कांड की याद दिलाता है। निर्भया कांड ऐसा कांड जिसमें पूरे देश ने उसको कॉग्निजेंस लिया और कानून में बदलाव लाया गया और सबके रोंगटे खड़े करने वाला हादसा था। ठीक वैसा ही हादसा अब केरल में हुआ, लेकिन उस विषय पर ना तो वो लोग जो हैदराबाद के चक्कर काटते थे, राहुल गांधी जी से मैं प्रश्न करना चाहती हूँ
कि आपके पास हैदराबाद जाने का समय था, आप उत्तर प्रदेश में कलावती को ढूंढने पहुंच जाते हैं, बाकी दलितों की बात करते हैं, लेकिन आपके अपने राज्य में केरल में जब ऐसा हादसा होता है तो आपकी अनुपस्थिति ज़्यादा देखने लायक है। और साथ ही जिस पार्टी की नेता खुद महिला हो, अध्यक्ष महिला हो, उस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री तक से प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा हादसा कैसे हुआ और उसके पीछे की क्या कहानी है और क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब केरल में एक ऐसे माहौल, अगर आप पूर्व में देखें तो आप पाएंगे कि केरल के अंदर जहां पर महिलाओं के साथ जो है व्यवहार में, सांस्कृतिक रूप में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, ऐसे समाज में उस समाज का ताना बाना बिखरा जा रहा हो और उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की लाचारिता और लचर व्यवहार जो है वो जिम्मेवार है। और आज मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अध्यक्षा जो कांग्रेस पार्टी की हैं और उपाध्यक्ष जिनके पास हैदराबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कहीं भी जाने का समय है, लेकिन केरल जैसे राज्य में ना जाने का समय है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछने का समय है। और उससे पूर्व में भी जो हालात केरल में रहे हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं के परिवेश में अगर देखा और समझा जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन पर बहुत चिंतनीय विषय है और प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं आपके जवाब दूंगी। My question is, if elections were not on in Kerala, where BJP is also contesting, would the party have brought up this tragic issue here in Delhi and put these questions to other national parties? Absolutely, ma'am. We would do it. We were not in, there were no elections in Delhi, and we were far off from the Nirbhaya issue. When Nirbhaya happened, we did rake up the issue, and I did go to Banda. I have been to Barabanki. Wherever such incidents happen, we, as a national party, actively take interest and want justice to come to such families and such victims and their families. देखिए, मेरा आज का जो प्रेस है वो इस विषय पर नहीं है, इसलिए मैं इस विषय से भटकना नहीं चाहती। और महुआ जी की जो प्रश्न है उसी में सिर्फ दो बात और जोड़ना चाहती हूँ कि हमने तो पूर्व में भी जहाँ जहाँ इस तरीके के कांड हुए, प्रकरण हुए, हमने हर बार अपनी आवाज़ उठाई है। आज प्रश्न उनसे पूछने का है समय और आप सबकी मदद चाहिए जो उस राज्य में प्रशासन में शामिल है, सरकार में शामिल है, लेकिन अपनी अनुपस्थिति से अपना परिचय दे रहे हैं। अब वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और पेंडिंग जजमेंट है, तो जो होगा वो सब पे बाध्य होगा। पेरुम्बवूर PERUMBAVUR और ये एर्नाकुलम में है। मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहती, जो निर्णय होगा वो सबके सामने आएगा, समय अनुसार आपको बता दिया जाएगा। मेरे को जानकारी नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं और अभी वो चीज़ सामने आई नहीं, तो आपके बयान पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहती। आज सुबह पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग रेगुलर मीटिंग है जो कि हर हफ्ते होती है और उसमें आज खास तौर पर बलराज मधोक जी की कल जो मृत्यु हुई उस पर श्रद्धांजलि दी गई और जिसमें श्री LK आडवाणी जी और प्रधानमंत्री जी खुद सम्मिलित थे
और उनके विषय में बात की गई और बाकी जनरल पार्टी की जो प्रकरण है उसके बारे में कि जो भी काम हो रहे हैं उसको नहीं, कुछ पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशंस आ रहे हैं वगैरह उसके बारे में नहीं, ऐसा चर्चा नहीं, उसमें कुछ चर्चा नहीं थी। मुझे नहीं मालूम आप लोगों की कितनी सैलरी है और दिल्ली में रहने की कितनी सैलरी की ज़रूरत है। अब हम जैसे लोग तो नहीं, तो वही कंपैरिजन तो तभी होगा ना, कंपैरिजन तो तभी होगा जी। नहीं, मुझे नहीं मालूम साहब, जिस विषय में जानकारी नहीं उस विषय की क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही 100% डिपेंडेंट महिला हूँ अपने पति पर। नहीं, मैं तो मेरी सैलरी तो क्या होगी, मैं तो अपने पति पर 100% डिपेंडेंट महिला हूँ। थैंक यू।